Hello, everyone. Welcome to another episode of Let's Talk. Today Saturday night और आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेके आए हैं सैटरडे नाइट को सामने रखते हुए क्योंकि यूजुअली वीकेंड्स पे पीपल गो आउट पीपल एंजॉय एंड पीपल सोशलाइज लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना क्योंकि सोशलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और कहीं आना जाना बंद हो गया है तो इसलिए हमने सैटरडे नाइट को एक स्पेशल सेशन रखा है कि जिसमें हम आपको मिलाएंगे एक बहुत स्पेशल सिंगर से who has done amazingly well for herself and for Pakistan as well. उन्होंने पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अवार्ड जीते और उनकी आवाज़ is one of the finest voices that Pakistan has to offer और उनका म्यूज़िक इज़ वेरी ब्यूटीफुल वो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स करती हैं अपने म्यूज़िक के साथ एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ the musical regime of Pakistan. I'm talking about none other than Hadika Keani, who will be joining us in just a few seconds, and then we will take the conversation with her forward. Some interesting fact about Hadika is that Hadika is also a part of our Women on Wheels campaign. So आप में से कई लोग शायद नहीं जानते कि Women on Wheels जो हमारी कैंपेन है जिसमें हम लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं ताकि दे बिकम इंडिपेंडेंट दे बिकम पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक वर्क फोर्स और सिंपली लाइक दे कैन टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ. तो Hadika Kiani was one of the celebrities that volunteered and she joined us and she got training from us and then she learned the motorcycle and then she helped a lot of girls also by encouraging them to to learn motorbikes. So Hadika के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक working relationship रहा है and then on top of that Hadika was part of our first Ek Sham project that we did to honor the legendary Farida Khanum ji. तो फरीदा खानम जी का जो हमने कॉन्सर्ट किया था अलहमरा में Hadika Kiani was one of the artists who performed and she was so kind that she agreed in just on this one call and then she performed wonderfully at that concert. तो and that concert was in March and इंशाअल्लाह उसकी जो videos हैं वो भी हम अब एक या within 1 week जो है वो post करेंगे. So music is something that really gets people into good moods. So that's why हमने Saturday को अब हदीका के साथ ये session रखा है and I'm just gonna see if she's here. So I am going to just loop her in. Just give me 1 second. I am going to just check, log in. So till Hadika joins us, आप लोगों की कोई request है तो आप please you start sending your request so we will present it to her as soon as she comes online. And hopefully you guys are keeping yourself safe, you guys are staying home and you're not going out. आज एक और चीज़ जो हम हदीका के आने से पहले एक डिस्कस कर लेते हैं कि आज एक और डिसीजन हुआ जिसमें बताया गया कि अब रमज़ान के मौके पर दे हैव अलाउड सर्टेन एक्टिविटीज़. तो लेकिन हमारी आपसे ही रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ फॉलो व्हाट द डॉक्टर्स एंड व्हाट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग. अपने आप को बिल्कुल रिस्क में मत डालें और कोई भी ऐसी चीज़ मत करें कि जिससे आपको या आपकी फैमिली को किसी भी 1% चांस ऑफ रिस्क हो. रिमेंबर कि पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टिंग है, सही फिगर्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे और जो एक्चुअल केसेस ऑफ कोरोना वायरस आर हायर दैन व्हाट आर बीइंग रिपोर्टेड. So it is very important that you do not put yourself in unnecessary risk and you stay away from public places as much as possible. Let me see if she has just 1 second. I am going to just
sent you the invitation, and now you can just join it. Is it coming okay? Here you go. So let me just. You can see me? Can you see me? आपको आवाज आ रही है दीका? I can't hear you. Can you hear me? आपकी आवाज नहीं आ रही. Can you hear me? Can you hear me? Hold on one second. आपको मेरी आवाज आ रही है? I think आपका म्यूट है. Speaker is mute. Can you see if your speaker is mute? Let me see. Now the speaker has. Let me. आप disconnect करके दोबारा join करो. So let me get you back in. There has been some issue, so I'm gonna loop her back in. So just Adhika, if you can see us, please join it. आपको invitation गया है, so just click yes. आपको invitation गया होगा, Adhika, can you see? Let me see. I've just sent you the request again. Can you see it? Yes. Here you go. Yes, Yeah. now I can hear you. Yes. Hi. Hello. How are you? I'm good. I'm good. How are you? Good, good, good. क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं सब ठीक ठाक? Right. Good to see you. True blue. True blue always. Yeah. How are you? Good, good, good. Quick, get her back. Oh my God. अच्छा नीचे बड़े अच्छे अच्छे comments आ रहे हैं भाई. वाह, मैं तो बड़ी excited हो जाती हूँ ये comments देख के. People are very happy and they're very देखो या excited मैं that you आप are here. Finally, hi. Everybody saying finally hi. Umar Nisar is saying hello. It's such a great thing that you're doing. Seriously, ये बड़ा जरूरी था क्वारंटीन में. हमें समझ रही हूँ कि हर कोई जो है ना यहाँ बस first point के ऊपर. ऐसे ही है. One of my friends I was just talking to, Emirates होती है, and she's a wonderful singer also, Huma Khaja. She's like my sister for a long time. तो वो कल वो हमेशा मुझे बड़े अच्छे अच्छे जोक्स और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें भी भेजती रहती है. सो वी एक्सचेंज रियली गुड लाफ्टर्स. तो वो मुझे कह रही थी काफी, मैं अपनी सिचुएशन उसके साथ कंपेयर कर रही थी, तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड. अब फिर मैंने उसको कहा नहीं नहीं बेटा, एक काम करो, तुम कास्टअवे देखो. अभी तो तुम अपार्टमेंट में अकेली हो. अगर तुम आइलैंड में होती और मोबाइल भी ना होता, तुम्हारे पास टीवी भी ना होता, नेटफ्लिक्स भी ना होता, तो फिर क्या तुम. So she said, "Oh my God, I think this is a very good approach. मेरे ख्याल में मुझे कास्टअवे देखनी चाहिए." मैंने कहा बस आज ही दोबारा से. ये आपको जब तक आपके साथ चीजें आपके पास होती हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि what you have and what you're missing. So sometimes it's good to have a. I think अगर डिजिटल मीडियम का क्वारंटीन हो ना, फिर मैं देखूं कि 2020 में लोगों का क्या हाल हो. बिल्कुल सही बात. हाँ, we are very addicted to all of this. आज हमारा एक सेशन था तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि कोरोना जहाँ पे उसकी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन उसने एक चीज हमें ये भी सिखाई है कि we are dependent on a lot of things which we can live without.
तो उससे हमें आइडिया हो रहा है कि कि लाइफ कैन बी वेरी सिंपल इफ वी वांट इट टू बी। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड जैसा हमने बनाई हुई, हमने अपने आप को डिपेंड नहीं किया हुआ लॉट। अच्छा सुने, ये कोई कह रहा है कि मेरी आवाज म्यूटेड आ रही है, तो क्योंकि मैंने वर्टिकल रखा हुआ है अपना मोबाइल, सो शुड आई पुट इट ऑन हॉरिजॉन्टल वे? दे शुड बी एबल टू हियर यू। अभी कोई ये पहले का कमेंट ना हो। अच्छा, मैं अगर हॉरिजॉन्टल कर दूं तो वो मेरा वो स्पीकर वाली साइड सही हो जाएगी? आप कर लें इफ यू वांट टू डू इट आई कैन आल्सो, इफ यू वांट टू डू इट आई कैन डू इट। हाँ ऐसे कर लें। अगर मैं इस तरह कर लूं तो मेरी आवाज बेहतर है? हाँ दिस इज फाइन, दिस इज आल्सो फाइन। ये ठीक है? मेरी बिल्कुल आवाज ठीक, बिल्कुल ठीक, आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरी तो आवाज लेट्स की स्टार्ट। पहचान है, घर याद रहे। घर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हाँ मेरी आवाज गुलजार साहब। जी जी बिल्कुल, सो जी, यू आर अ फैन ऑफ गुलजार बिल्कुल। साहब, दैट्स अ गुड स्टार्ट, दैट्स ऑलवेज अ गुड वाह, हाँ स्टार्ट। जी। मैं वही कहते गुलजार हैं साहब वो को मिला आर्ट जब आर्ट की तो कोई लिमिट नहीं है ना, आर्ट तो हमारा एक ही है ना, लैंग्वेज हमारी एक है, शक्लें हमारी एक जैसी हैं, तो सब कुछ क्या करें, बस ये बाउंड्रीज के अंदर हम बस वो हो जाते हैं। बट ऐसे ही है। एनीवेज आई थिंक दिस टाइम इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, एंड आई फील के हम लोग जो है ना वो एक ऐसे भंवर के अंदर फंसे हुए थे जिसमें मुझे लगता है कि जैसे जैसे सारी दुनिया के लोग जो है ना इतनी स्पीड बोट में जा रहे थे, इतने तेज 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 रोबोटिक वे में सुबह उठे हैं, ये हला ला 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 ला। तो उसमें उसमें इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक पॉज बटन ऊपर वाले ने लगाया हम सब के ऊपर कि जस्ट होल्ड काम योरसेल्फ, डाउन, यू नो, काम डाउन। यस, काम डाउन। बहुत सारे रेपरकशंस हैं, बट आई थिंक मैं हमेशा समझती हूँ कि कुछ एडवर्सिटी में से ना, यू नो, यू ऑलवेज पुल आउट समथिंग पॉजिटिव। तो इस एडवर्सिटी के अंदर से जो पॉजिटिविटी निकल रही है, फैमिली की बॉन्डिंग्स बन रही हैं, हमें वो वाली चीजें जिन पे हम बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, वो लोग जिन पे हम बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, वो जगह जिन पे हम बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे, यू नो, वी आर ट्राइंग टू नाउ डिस्टेंस फ्रॉम, अब ट्राइंग क्या, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, बट ये है कि हम उन चीजों से डिस्टेंट होके ये सोच रहे हैं कि ये हम तो इन चीजों के बगैर रह सकते हैं। एग्जैक्टली, एक जनरल एग्जैक्टली, जनरल पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। सो आई थिंक दिस एग्जैक्टली। टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट, दिस इज टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिस इज टाइम टू लाइक डिग डीपर इनटू योर सोल एंड फाइंड आउट कि आपकी सोल सेटिस्फेक्शन किस चीज में हो रही है। सो हर इंसान की आई थिंक वेरी करती, डिफर करती है कि सोल सेटिस्फेक्शन किसकी किस में हो रही है। सो वो दैट यू नीड टू फाइंड आउट, and this is the best time that you can find out and sit with yourself, because there is lot of time। आपने कहते हैं ना वो मेरा, मैं आपके सितारे एक कर रही थी होस्टिंग का शो, तो उसमें एक बबलू डब्लू है जिसको मैं कहती हूँ ना, मुझे कहते अच्छा, हैं आप ही हुण असी की करना है, रात ਨੂੰ सोना है तो फिर सुबह उठ के फिर सो जाना है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, कहते हैं कि काम तो बड़ा है कि सोना है और फिर उठ के फिर सोना है। सो आई थिंक so life is या very simple. वैसे सोना इज ओके, बट देन जिंदगी में सोना इज नॉट द राइट थिंग। जिंदगी में Life यू is नीड too टू बी short. अवेक। या, तो Life आई is too थिंक short. लाइफ, मैं अपनी छोटी छोटी फिलोसफीज लगाती रहती हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि लाइफ जो है वो तो टीचर है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है ना, उसमें वो है ही एक स्कूल, and it is a school where we have good teachers, or teachers in the form of your experiences, teachers in the form of physical beings in front of you. And there are good teachers, there are teachers who actually teach you, there are teachers who don't teach you anything, there are teachers who teach you bad lessons. So there are I bullies, think that's also a lesson. Who there are don't teach you, that's also a lesson. एग्जैक्टली आपके क्लासमेट्स हैं, बुलीज हैं, आपके हेटर्स हैं, देन देयर इज अ कंपटीशन लेवल, देन देयर इज अ विनिंग, देयर इज लूजिंग, देयर इज फेलियर। सो ये सारा का सारा जो एक स्कूल सिस्टम है, उसमें सरवाइव तो करना है, बट सरवाइव कैसे करना है, सर्वाइवल इज नॉट द ओनली थिंग, यू नो, यू हैव टू लिव इट, हाँ यू ऑफ हैव कोर्स। टू वो लिव इट। वो है ना उनका, सजाद भाई का एक गाना नहीं, उसका फिल्म बोल का, वो उसमें जिंदगी, वो उसमें कहते हैं कि साथ काटी है या गुजारी है। सो दैट इज एग्जैक्टली, इसके जिंदगी काट भी सकते हैं लेकिन जिंदगी गुजारना इज द थिंग।
सो वो अभी आप जितने वो मीम्स एंड जोक्स मैरिड कपल्स के देख लें तो उसमें बस वो मेरे हमें काट ही रहे हैं, गुजार नहीं रहे, लेकिन आई थिंक गुजार लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही या है. So बट let's take the मैं तो conversation forward. I mean, like wonderful career, amazing songs, amazing albums. So how did it all start for you? आपने किधर से आपकी inspiration and किधर से आपने start की? Plus, I mean, like you were the first Pakistani, I think, female singer जो UN की फिर UNDP की, I think, I believe if I'm right, Goodwill Ambassador, you were yeah, nominated. So amazing, Alhamdulillah, Allah Ta'ala gave you a lot of, success. So blessings. where did the singing come from? I remember, I'll remind you, government college की बात है. You were in masters, I believe, and I was also there. So I think you were in psychology department, I believe, right? So Yes, उस वक्त psychology भी आप department. सोसाइटी में आपका था आना Yeah, जाना सोसाइटी. मेन तो डिपार्टमेंट वहां में से आपका ये स्टार्ट हुआ. start तो I think a lot of my followers who've been following me for a long time they do know that या कि बचपन से ही स्टार्ट हुआ हुआ है. ये आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद किसी भी टाइम पे आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं जिंदगी में, जब भी अवेयरनेस आपको आ जाए, जब भी आप जाग जाएं. बट ये है कि आई थिंक अम्मा को मैं इसमें बहुत ज्यादा इसका एक दूंगी, क्योंकि she was very much aware कि when I was 3 years old my father died, so she knew it that उनके 3 बच्चे थे, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन. तो she made sure कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए. सो उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में that was the time when she took us to Pakistan National Council of the Arts Children Art Workshop. वहां पे उन्होंने हमारा ऑडिशन करवाया. उस ऑडिशन में फॉर्चुनेटली हम तीनों की आवाजें उन्होंने चेक की, ऑडिशन की. सो तीनों की आवाजों में सुर निकला अल्लाह ताला की तरफ से. तो वो वहां से अम्मा को ये लगा कि जैसे दीज किड्स कैन डू समथिंग. लेकिन ये हरगिज नहीं था कि प्रोफेशन बनेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द टाइम जहाँ पे कोई भी म्यूजिक को प्रोफेशन बनाने का सोच भी सकता था. So, but still she was encouraging because she was in the education system. तो मास्टर्स इंग्लिश में उन्होंने खुद किया हुआ था, प्रिंसिपल थी वो स्कूल की, तो एजुकेशन में बड़ी स्ट्रिक्ट थी. But she made sure that she kept a balance, education and extracurricular. वो एक्स्ट्रा करिकुलर में चलते चलते उस पाथ में वो चीज होती गई, और मेरा जुनून और मेरा पैशन जो है वो उस चीज के अंदर बढ़ता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और मैंने फिर बहुत सारी चीजों को, कहते हैं ना, आप लाइफ में त्याग भी दें, बहुत सारी चीजों को आप सेक्रीफाइस भी कर दें, जस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट यू डोंट वांट टू लीव, बिकॉज यू फील दैट दिस इज पार्ट ऑफ योर बीइंग, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिस्टम, यू कांट लीव दैट. तो फिर मैंने चीज के लिए बहुत स्टैंड लिया और पक्का ढीटों की तरह स्टैंड लिया. और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की, because he has music in him, and trust me, he has more music within him than me, because I'm a witness to that. He's very much involved. Yeah, he's both theoretically he knows a lot about it, practically he knows a lot about it. तो वो theories और उन चीजों के अंदर मैं बहुत वीक हूँ शुरू से. वो उस जो राग और रागाज मैं अपने गले से कोशिश कर लेती हूँ निकालने की, बट मुझे थ्योरी नहीं आती. बट इंसान को अपनी वीकनेसेस का पता होता है कि मैं हमेशा अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बट ही इज लाइक अ बॉर्न टीचर, कि वो सीख के तो उसको सिखाने की भी कोशिश करता है. सो मैं जो लर्निंग प्रोसेस में ही रहती हूँ, और आई कांट टीच नहीं कर सकती मैं. सो I've been blessed that way. That's wonderful. That's a wonderful journey. जो आपने बताया कि अभी लाइक आपकी वालदा, मेरी भी उनसे फोन पे बात हुई थी. किसी ने मेरे से पूछा है फ्रॉम वेयर यू बिलोंग कियानी साहिबा जी. मेरे जो 4 फादर्स हैं, आई बिलोंग टू कहूटा, और जो न्यूक्लियर सिटी है हमारी जगह है, वो मेरा अबाउ अजदाद की जगह है, और से बिलोंग करती. सही है. मैं अभी बता रहा था कि आपकी वालदा, दैट्स वेरी नाइस टू हियर कि उनकी काफी एनकरेजमेंट रही. आई स्पोक टू हर, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, और मेरी मुलाकात उनसे पेंडिंग है, लेकिन इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात करूंगा मैं उनसे. शी इज वेरी अमेजिंग. और आपके भाई का भी जब मैंने देखा, सो योर एंटायर फैमिली इज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड. सो यू हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू परफॉर्म एट रॉयल अल्बर्ट हॉल, Kennedy Center.
आपका कोई फेवरेट वेन्यू है जब when you went outside? What was the feeling to perform at such powerful and such a historic place and coming from Pakistan is such a high honor. तो आपके लिए कौन I सा think experience was more? Royal Albert Hall, obviously, then Kennedy Center was another, and then obviously वो जो Wembley Arena है, there I performed. और वो ऐसा टाइम था जब वो पाकिस्तानीज, और आपको पता है कि लंदन में जो पाकिस्तानीज हैं माशाल्लाह वो इतने वो एनर्जेटिक, और वो आई थिंक एक ऐसा टाइम भी था 90s के अंदर कि जिसमें एक एनर्जी का लेवल वाज समथिंग एल्स. अब ये है कि थोड़ा पाकिस्तान में तो खास तौर पे फियर फैक्टर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो पाकिस्तान में तो कॉन्सर्ट्स करने का हम ज्यादा सोच भी नहीं सकते. सो आई फील दैट इन द प्राइम टाइम ऑफ माय म्यूजिकल जर्नी, you know, all this suppression of music started, which is very unfortunate. But ये है कि सिंगर का काम है गाते रहना और म्यूजिक बनाते रहना. So I'm just putting myself in process. और अब आजकल क्वारंटीन के अंदर भी, सेल्फ आइसोलेशन के अंदर भी, मैंने यही सोचा है कि इस टाइम को इसी लिहाज से मोल्ड करूंगी. आई एम कुकिंग YouTube के ऊपर, मैंने ऐसे ही अपना वो एक कॉर्नर बना के वो कुकिंग शुरू कर दी है, सीरियसली, बिकॉज मैंने देखा था कि आप काफी इंटरेस्टिंग चीजें बना रही थी. हमें क्वारंटीन होती तो शायद मैं नॉक कर लेता आपके घर आके, लेकिन हर रोज उठ के अपने आप को पुश करना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल एवरीबॉडी कि हर रोज अपने आप को पुश करें. नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड पुश यू एंड पुश योर बटन के उठो और कुछ करो, और ये नहीं. You have to do it within yourself. The force has to come from within you. ये जो आपने भी बात की है ना, मैं यही आपसे भी करने लगा था कि फॉर द व्यूअर्स एज वेल कि यू हैव माशाल्लाह डन फिनोमिनल वर्क इवन जब अर्थक्वेक आया था. So you did some amazing work with ED Foundation, and you yourself also donated to build a lot of homes जिनके घर बेचारों के चले गए थे. तो आप कोई बताएं कि लोगों को, आपके जो फॉलोअर्स हैं और पीपल फॉलो यू, उनको बताएं कि आजकल के दौर में लाइक व्हाट कैन दे डू इन ड्यूरिंग दिस कोरोना, कि हाउ कैन दे हेल्प, और आप क्या कर रही हैं, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि यू टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इवन नाउ. जी देखिए, बस अब वही वाली चीज है कि उन चीजों को वो पब्लिसाइज करने में बहुत, अब डिजिटल मीडिया का दौर है. अगर आप पब्लिसाइज नहीं भी करते, और वो अगर आप न्यूज बना के बताते हैं लोगों को, जस्ट टू यू नो गैदर मोर सपोर्ट फॉर मोर पीपल, तो उसमें भी वो आपको एक बैकलैश आता है नेट के ऊपर के, ओ ये क्यों हो रहा है. हाँ, ये बात सच है कि अगर आप 4 लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उसके ऊपर आप तस्वीरें बनवा रहे हैं, सेल्फियां बनवा रहे हैं, that is not going to serve any purpose, क्योंकि ये एक ongoing process है. इसके अंदर आपको ongoing रहना पड़ेगा. फ्लड्स के अंदर 255 हाउसेस बनाए मैंने, इसी तरह ही बनाए कि मैंने उनको पूरे को कवर किया ताकि मुझे और ज्यादा सपोर्ट मिले लोगों की, कि अगर मैं 4 घर बना रही हूँ तो मैं 100 बना लूँ, 100 बना रही हूँ तो मैं आगे और बना लूँ. तो इसलिए मैं 255 हाउसेस KPK में बनाए मुख्तलिफ जगहों पे, मियां ईसा में, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मला खान, और मुगलपुरा एक जगह है वहां पे. तो टोटल में 255 हाउसेस विदाउट एनी NGO सपोर्ट एंड विदाउट गेटिंग अ पार्ट इनटू एनी NGO. अब भी मैं, ये है कि मेरी माशाल्लाह से सैलून है, सैलून की बच्चियां हैं, उनके अंदर राशन चीजें मैं कुछ ना कुछ लगी हुई होती हूँ करने. लेकिन ये है कि अभी ED फाउंडेशन, जिसको मैंने तकरीबन 20 साल से ज्वाइन किया हुआ है, तो अब मैं उनके साथ एग्रेसिवली इस पॉइंट के ऊपर काम कर रही हूँ. और मैं अब आपकी भी माशाल्लाह से सलमान सूफी फाउंडेशन है, यू आर आल्सो वर्किंग माशाल्लाह ऑन लॉट ऑफ वेंचर्स लाइक दैट. तो मेरी सपोर्ट तो हर एक के लिए हाजिर है. इट्स नॉट जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन. would love to support all जो दिलो जान से काम करें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल में कोने कोने के ऊपर अभी इस टाइम जरूरत है, और स्पेशली डेली वेजेस वालों की तो बहुत जरूरत है. बिल्कुल. यानी एक्सीलेंट. ये जो जिस तरह आपने पहले भी काम किया और अभी भी आप ऐसा माशाल्लाह कर रही हैं, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ पीपल who actually think on these grounds. लेकिन जो आपका वैसे भी आपकी म्यूजिक में भी हमने देखा है कि there is a Sufi angle to this, there is a angle of soul searching into it. आप म्यूजिक भी जो आपका पहला जो सॉन्ग, the one that gave you the stardom, बूहे बारियां, I think it's written by your mother. Yes, it is. Most of my songs are written by my mother. और मेरे ख्याल में सोल सर्चिंग की ही बात है. एंड दिस सेल्फ आइसोलेशन टाइम, इसमें जो कोई ये कह रहा है ना कि मैं बहुत लोनली हो गया हूँ या मैं बहुत लोनली हो गई हूँ,
ट्रस्ट लोनली वो होता है जो अपनी सोल के साथ नहीं होता, जो अपने सेल्फ के साथ नहीं होता. सेल्फ इज एन एंटिटी, कंप्लीट एंटिटी. और अगर आप अपनी सेल्फ के साथ, सोल के साथ भी लोनली हैं, तो फिर वाकई आप लोनली हैं. तो एट दिस पॉइंट हमें ये एक ऐसा अवेकनिंग का टाइम भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो अपने आप को लोनली डिक्लेयर कर रहे हैं. They should not feel lonely. Yes, we do want somebody in the form of a physical being के हमारे साथ हों, बात करें, शेयर करें, ये सब कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन हर एक के खाने पूरे नहीं होते. कोई ना कोई एक खाना इंसान का खाली रहता है. But I think the most important thing is to connect with your soul deeper and do know that what you want, what makes you happy, what is your purpose in this world. Why are you here in this world? What difference can you make? आप क्या किसी की जिंदगी के अंदर फर्क ला सकते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं है मेरे लिहाज से. वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाना जरूरी है जिंदगी के अंदर. बहुत बड़े बड़े ड्रामेटिक फिल्म्स बनाने के लिए कोई नहीं कह रहा इस टाइम पे. आप अपनी जिंदगी की को जरा ठीक तरीके से एक छोटी सी अच्छी सी स्टोरी बना ली अपनी जिंदगी की, तो भी आप अपने लिए एक ऑथेंटिक सोल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, जिसके अंदर जो सॉलिड सेंट आपकी एक सोल हो. अभी बिफोर वी go to the most awaited segment of this program in which you're going to sing for us, the last question that I have for you is कि जब शुरू में भी बात हो रही थी, गुलजार साहब की बात हुई, तो गुलजार साहब से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे, जब मैं उनसे मिला तो मैं उनके उस रूम में मिला जहाँ पे वो बैठ के अक्सर लिखते हैं. तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि जब आपने ये एक लाइन लिखी कि इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है इस मोड़ से जाते हैं, तो वो आपने लिखी, तो उसके पीछे क्या, लाइक यू कैन नॉट राइट इट, इट जस्ट कम्स. ये वो चीज है जो आप मेहनत करके नहीं लिख सकते. तो आमद है. तो आपका जो हमारा, क्योंकि ये सेशन खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं और आइसोलेशन उनके ऊपर बहुत भारी पड़ती है, तो आप कोई एक उनको पैगाम दें छोटा सा कि ये जब व्हेन दे आर फीलिंग अलोन, व्हेन दे आर इनसाइड एंड दे डोंट हैव हेल्प, तो आप पे भी, हम सब पे ये वक्त आता है कि जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, वी फील कॉर्नर्ड, तो आप क्या करती हैं, क्या आप चीज करती हैं जिससे आपको एक फिर आपको एक होप मिलती है? I think that's a very good question, very deep and intense question. ये एक फेज होता है या एक वाइब आती है इंसान की जिंदगी के अंदर, जिंदगी में क्या शायद डेली बेसिस के अंदर भी. अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने आप को यूनिवर्स का पार्ट समझते हैं, पूरी इस कुदरत का पार्ट, रब की कुदरत जो रब ने क्रिएट की है, तो उसमें सुबह की सनशाइन का एक अपनी खुशबू और एक अपना कलर और एक अपनी ब्राइटनेस है. उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दोपहर आती है, फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता शाम आती है और रात आती है. द होल कोर्स फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट इज योर लाइफ. यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना? लाइफ इज मॉर्निंग टिल नाइट. भरी आप पैदा हुए अर्ली इन द मॉर्निंग, दोपहर आई आपकी भरी जवानी, शाम आपकी मिड एज आ रही, एंड देन नाइट योर ओल्ड एज, एंड देन गॉन. ये एक कोर्स है, वो रेगुलर कोर्स. अब इस पूरे कोर्स के अंदर टाइमिंग चेंज हो रही है और कोई टाइम नहीं रुक रहा. टाइम इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग. कभी इस तरह की अगर आपको वाइब आती है जिसमें आप डिप्रेसिंग थॉट्स में जा रहे हैं, मैं खुद आती हूँ इस चीज के अंदर, मेरे अपने पे आती है, हजार बार आती है, और मैं हजार बार अपने आप को पुल करके उठाती हूँ. मैं सिर्फ इतना सा मशवरा दूंगी कि कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज के अंदर ड्वेल कर रहे हैं और कोई चीज आपकी नेगेटिव, आप उसको जूम करते चले जा रहे हैं, आपने ग्लासेस लगा ली और बहुत जूम हो गया, तो उस टाइम कोशिश करें कि अपने आप अपनी एनर्जी स्विच करें, किसी और चीज के ऊपर लगा लें. भाई ये लगा लें कि सॉरी, ये अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ये पौधा ले आई हूँ, मेरे पास पड़ा है, मैं अभी इस टाइम देख रही हूँ, मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकती हूँ इसी वक्त.
कितना खूबसूरत पौधा, अरे ये तो प्लास्टिक का है लेकिन किसी ने तो बनाया होगा, कितना खूबसूरत बनाया है, इसके कलर्स कितने अच्छे किसी ने पेंट किए हैं, अरे इट लुक्स रियली नेचुरल, इट लुक्स नाइस। तो मेरी एनर्जी किधर चली गई? फ्रॉम यू टू हियर, एंड देन फ्रॉम हियर, एंड देन फ्रॉम हियर। मुझे नहीं पता था आप ये क्या सवाल मेरे से करेंगे, मैं तो वैसे एक बात कर रही हूँ, बट यहाँ से एनर्जी अब मैंने शिफ्ट की, आपकी तरफ आ गई मेरी एनर्जी। अब फिर आप मुझे किसी एक सवाल के अंदर लगाएंगे तो मैं फिर दोबारा से उसके अंदर वो हो जाऊंगी। अब मेरे पास एक ग्रीन टी पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने हनी वाटर डाला हुआ है, तो मैं अब अपनी एनर्जी इसके अंदर लेके जाऊंगी कि मैं अब ये पी रही हूँ, अरे बड़ा अच्छा मैंने बनाया ये, इसमें तो हनी भी डाला, इसमें लेमन भी डाला। यू नो, यू कैन चेंज, यू कैन शिफ्ट योर थॉट प्रोसेस इफ यू वांट। द पॉइंट इज कि आपकी विल है उसमें, आर यू विलिंग to bring some shift, some positive shift in your life, then you can do it. You can move the mountains, यानी mountains मैं अब उसको metaphoric way में कह रही हूँ कि you can do a lot of stuff with this brain machine. ये जो ब्रेन आपको अल्लाह ताला ने दे दिया है, इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर आप उनको उनकी वायरिंग को चक 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 क्लटर करना चाहें तो बहुत बहुत ही इसके अंदर एक फतूर मच सकता है। अगर इसी को आप काम डाउन करना चाहें, if you're willing, so the point is that you should be willing to shift your energies, then you can do that. थॉट आई कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, आज मैं जरूर एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन उठ के मैं कह रही हूँ कि नहीं, आई थिंक मैं कल करूंगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं उठ रही, आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ट्रस्ट मी, वो थकावट, वो स्टेट ऑफ माइंड, वो कल होता चला जाएगा, एंड देन इन द एंड यू विल हैव टू गेट अप एंड पुश योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। वो आप कर लें, वो आप नुकसान होने के बाद कर लें। कुछ लोग बहुत देर गुजरने के बाद फिर उठते हैं, होश आती है, मैं पहले ही, लेकिन कोशिश करें, इफ यू आर अवेयर, then push yourself. That's very interesting. Because I feel सलमान, इस टाइम में आपकी वसातत से बाकियों को भी जो 10 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्रैक्टिस करें इसको, प्रैक्टिस कंपैशन, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सबसे पहला पॉइंट उठते साथ ही ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू अल्लाह मियाँ, आपने मुझे एक नया दिन दिया, आपने मुझे एक नया दिन दिया एज अ गिफ्ट टू लिव इट। मैं कोई जानवर भी तो पैदा हो सकता था, मेरी सोल है ना, सोल अगर तूने मुझे अशरफुल मखलूकात के अंदर दे दी है तो कितनी बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और फिर एवरी डे अगर तू मुझे दे रहा है तो फिर देन यू नो ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। बिल्कुल सही, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। Practice to be aware, to be aware of the present moment. Live in the present, enjoy the present, and cherish the present. Especially, I really loved the example that you gave of morning, afternoon, evening, and then night. That's how life is. That's how life is. And what do you call it? My co-host is also here now. He's saying hello to you. Oh, hello. Oreo, say hello. तो बहुत क्यूट है, क्या नाम है? Oreo. ओरियो, अच्छा ओरियो तो भी चॉकलेट ब्राउन एंड व्हाइट साउंड, तो ये तो बड़ी बस इसकी जब ये पहली दफा आया तो इसकी शक्ल देख के मेरे ज़हन में आया ओरियो, तो हमने फिर ओरियो। ये मेरा को होस्ट है और ये रोज बस आता है थोड़ी देर के लिए, अपनी दिखाता है। बिल्कुल, किसी ने लिखा है पावर ऑफ नाउ, यस, एक हार्ट, oh my god, okay, let's now man, power of now, exactly. यही है। Now I'm gonna move the screen ताकि मैं देखूं कि जो सलमान, इसको कहते हैं ऐसे ही नुक्ता लम्मा पे होया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नुक्ते ते गल मुकती है। हाँ जी, नहीं मैंने कहा ऐसे नुक्ता लम्मा पे होया, यानी here the point lies. हाँ exactly. I got it late. I was reading the comments of people with क्या फरमाइशें आई। Okay जी, are you ready to rock us for Saturday night? Yeah.
आपके लिए आया जी लव फ्रॉम इंडिया मैम। रंधावा साहब तो इंडिया में है जो आपको कह रहे हैं, फिर डेजलिंग गर्ल है, उमेश हैं, और वो कह रहे हैं जी हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और राकेश साहब कह रहे हैं क्या बात है, गजब की तकरीर है कि आपने सो हार्ट फेल्ट। और शाहजेब साहब हैं, वो कह रही हैं हदीका आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करती जी, उनको रिप्लाई कभी कर देना। आप ये मुझे कह रहे हैं कि स्क्रीन वर्टिकल करूं, अगर मैं स्क्रीन वर्टिकल करूंगी मेरी आवाज दब जाएगी, दैट्स ओके, दैट ओके? नहीं मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने बस वो पढ़नी थी फरमाइशें। तो आई थिंक विल स्टार्ट विद योर द वेरी फर्स्ट वन, बूहे बारियां, एंड देन विल गो टू द फरमाइश। इज दैट ओके? ऑलराइट, ठीक है, मैं कर लेती हूँ बूहे बारियां। ये तो ऐसे जैसे कि मैंने वो जो है ना वो ऐसे ऐसे करके बजाना है, बजाना तो यहाँ से है, तो मैं अब वो विदाउट म्यूजिक है इसलिए बर्दाश्त कीजिएगा। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। चन चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे, डूंगे पानियां च फिर दीवे पे पल दे, दीवे पे पल दे, कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के, कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के, मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। वाह, अमेजिंग। हो गया मुझे लग रहा है अब हुआ है, लेकिन आई थिंक इट्स कमिंग बैक। we can hear you, we can hear you still, can you hear us? yes, अच्छा, वो वाईफाई का आपका थोड़ा हुआ होगा, आई थिंक इट विल कम बैक। Rajesh from India is also, Ravish is from India is also said love that song. Hello. And Meenu from India has also said it. So there's a lot of fans from India here who are giving their love to you. Hello, my Indian fans, followers. बल्कि मेरे fans followers क्या होंगे, सलमान की fans followers यहाँ पे। नहीं, ये सब आपके हैं. These are all your fans. And that's why we are very fortunate to have you here. I truly appreciate that they all took out their precious time and they are here. So it's a great honor for me. और ये screen stuck हो गई है, तो अब इसका मैं क्या करूँ? ये मेरे ख्याल में I think it will come back on its own. दोबारा कर लेते हैं. We can re-add you. Let me re-add you. All right. Let me re-add you. Folks, just give me 1 second. I'm gonna re-add Adhika. She was having some problems. We are having an amazing session with her. And I'm just looking for her. Here we go. I've just sent her the request. Can you hear us? Here we go. Yes. Okay. अच्छा जी, perfect. अच्छा जी, अगली जो फरमाइश आ रही है वो आ रही है छाप तिलक की, लेकिन मैं उसको एंड के लिए रखना चाह रहा हूँ. अच्छा. So उससे पहले अब आपकी चॉइस का एक गाना जो आप हमें सुनाएंगी, और लोग कह रहे हैं कि जरा पंजाबी में भी बोलें. So let's थोड़ी सी पंजाबी बोल लेने, कोई मसला नहीं. तारे लिए कोई मसला नहीं, तो मेरे लिए कोई मसला. यहाँ पे ना मेरा पांडा फूट जाएगा. क्योंकि पंजाबी में मैं गाती बहुत कड़क हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा सा जरा वो हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी पुठवारन भी तो हूँ ना मैं, थोड़ी सी नहीं, पूरी पुठवारन हूँ. एग्जैक्टली, कोटा की. असा कोटा ने पुठवारी हाँ, असा की पंजाबी अछड़ी, पर इतनी ज्यादा नहीं अछड़ी. पंजाबी मुख्तलिफ है जी. पंजाबी मैं बोलती हूँ, तुसी दसो की हो रहा है?
ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ थोड़ी डिफरेंट है, मैं क्या मेन लाइन पंजाबी तो नहीं नहीं वो, हाँ ये मुझे दोबारा ये है कोई ना। दाची भी बोल रहे हैं। आवाज आ रही थानू? आप बोले हाँ जी। पंजाबी में, बोलती हूँ आपसे पंजाबी। हाँ मैं कहा मैं हुण पंजाबी तुसी फिर एक बोलनी है। पंजाबी का कोई गाना सुना, एक तो हुण तुसी सुनाता बूए बारियां, हुण ठीक है। दूसरा कोई सानू अपनी पसंद का कोई गाना एक सुना दो। हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पसंद का गाना सुना देनी आ। एक गाना मैं हुणे यू नो कीता व्हाट, है। यू नो व्हाट, आई टेल यू क्या? एक शाम पे फरीदा जी के लिए जो आपने लास्ट गाया था, जो उनका गाना, मैंने पैरों में पायल तो बांधी। या यस। अच्छा, वो तो कोई पंजाबी नहीं है, वो तो कोई पंजाबी नहीं है, वो तो आपकी वो पसंद का पंजाबी हमने गाना है। एक सुन ली है ना, बूहे बारियां, तो अब हम हाँ वो सुने। अच्छा ठीक है। हाँ। हम्म, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छनाना छन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है छनाना छन छननन छननन छननन। ठीक है, इतना सही है। बहुत जबरदस्त। इतना सही मैंने है। ये लगाया भी था एंड पीपल लव्ड इट, व्हाट अ परफॉर्मेंस यू हाँ गेव दैट डे। और मुझे बल्कि आज मेरी कल फरीदा जी से बात हुई तो कहती है मैं बुलाया सी उन्होंने, हदीका ने भी बुलाया डिनर ते, तानू भी बुलाया है, पता नहीं केड़ा मुआ आ गया वायरस है किसे नु आ उन्होंने नहीं रहा। बिल्कुल मुझे बुलाया बुलाया था, लेकिन उसके फिर ये इसी तरह यही हो गया कि सारा ये लॉकडाउन और सब कुछ, वो हमने मैंने उनको कहा था बिल्कुल जरूर मैं आऊंगी, लेकिन वो आई थिंक वो फिर हम लोगों ने टाइम और डेट ही डिस्कस नहीं हुई, और उसी दौरान फिर ये कोरोना वायरस की कहानी आ गई हमारी जिंदगियों के अंदर, ऐसे हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए। ऐसे ही, तो ऐसे ही। मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाची सुना देती हूँ, क्योंकि डाची का भी जी। मुझे इसमें आ रहा है, हाँ हाँ। रिक्वेस्ट मैंने देखी है। अच्छा जी, एक साहब कह रहे हैं हदीका टुडे इज माय बर्थडे एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी दिस मेक्स मी। आई प्लेड योर सॉन्ग फ्रॉम द विंटर ऑफ विस्कॉन्सिन टू गॉर्जियस सेंटा बारबरा। वाह जी, बड़े फैन हैं आपके। विस्कॉन्सिन से सेंटा बारबरा तक वो गए ड्राइव करके और आपके गाने सुनते हुए गए। हाउ नाइस, थैंक यू, हैप्पी हाँ बर्थडे। ये कौन है हाँ। साहब, कब इनका ये हैं जनाब, एक मिनट में अभी आपको नाम बताता हूँ इनका। किधर गए भाई साहब, गायब हो गए हैं कहीं पे। हमें सेंटा बारबरा चले गए हैं लिखते लिखते। चलिए, सेंटा बारबरा वाले जो साहब हैं उनके लिए जो है ना, इनका नाम है हैप्पी शैक बर्थडे टू फिफ्टी यू। सिक्स वन वन तो मैं हमें शकील साहब होंगे, शैक लिखा हुआ है शकील इन्होंने। साहब, हैप्पी बर्थडे डियर शकील, हैप्पी बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे टू यू। यू। यस। और अब मुबीन शिफात साहब एक्चुअली इज अ वेरी गुड फ्रेंड, जो ये हमारे, आप देखती हैं ना इन्फोग्राफिक्स जो हमने बनाते हैं इसके सारे, वो इनकी क्रिएटिव जंक्शन है, वो बना के देते हैं एंड वाओ। दे वॉलंटियर फॉर दिस वर्क। तो थैंक यू मुबीन साहब फॉर ट्यूनिंग इन, एनी सिंग अमेजिंग। अच्छा जी, एक हमारे सरदार जी हैं, जी वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट सॉन्ग बूए बारियां, वो हो गया सरदार जी, हुण दूसरा कोई सुनाने हैं तानू। एक अब रिक्वेस्ट आ रही है जनाब आपके लिए, वो फिर बार बार कही जा रहे हैं जी, वो तानू एंड च एक लाइन सुना देंगे सरदार जी। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सुना देंगे। आप अधिका आप अपनी चॉइस का एक गाना सुनाएं, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी। डाची 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 फरवा सईद कह रही है, दाची डाची सुनाती हूँ मैं, दाची, हाँ दाची सुनाती हूँ, स्ट्रेट दाची से ही आते हैं। हाँ। दाची वालिया मोड़ मुहार वे, सोनी वालिया ले चल नाल वे, हो टाची वालिया मोड़ मुहार वे, सोनी वालिया ले चल नाल वे, सानू ले चल अपने नाल वे, वे सानू
ले चल अपने नाल वे वे डाची वाले मोड़ मुहार वे हो डाची वाले मोड़ मुहार वे सोनी वाले ले चल नाल वे। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट वाज अमेजिंग। थोड़े थोड़े से गाने चखा रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, डाची एक और की भी फरमाइश आई हुई थी, मैंने अभी वो नाम नहीं नोट कर सकी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल जी उसमें आ जी, रहा है। वो मेरा एक ओएसटी है जो मैं ठीक है। सुनाऊंगी, उडारी उडारी ड्रामे का। हाँ हाँ, प्लीज ठीक है, वो प्लीज मैं सुनाती हूँ। प्लीज। तेरे नाल प्यार होया, दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार होया, दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है। हाय सजना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना। हाय आना सजना, हाय सजना सजना सजना। Wow, wow, ठीक है। wonderful, wonderful. That is such a amazing Saturday night that we're having. जो नहीं, मेरे मुझे नहीं लगता कि अगर कोरोना की क्वारंटीन ना भी होती तो इससे अच्छी सैटरडे नाइट कहीं पे मिल सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अच्छा जी, मच। अब मेरे ख्याल में आप वो सुना दें। हमजा साहब भी भेज रहे हैं, खालिद जिंदगी साहब, खाक उमर न थी, मिर्जा, वाओ। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। ये भी हाँ, एक सुना देती हूँ, एक बैलेट सा है जो जिंदगी जिंदगी खाक नहीं, हाँ प्लीज ये सुना दें। जिंदगी गुलजार है, एक ड्रामा आया। ठीक है। हम्म और काफी अच्छा ड्रामा था, तो उसका हम्म ओरिजिनल साउंड ट्रैक वही सुनाती हूँ मैं आपको। प्लीज। ये नसीर तुराबी साहब का है, बड़े अच्छे अच्छा, शायर वो थे कराची वो के। हम सफर था, हाँ जी 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 मगर जी उससे जी। हमने मारी ना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाती गुजरी, जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाती गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी, जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी, दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा, हो दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा, शाम आई तो कोई ख्वाब सजाते गुजरी, शाम आई तो कोई ख्वाब सजाते गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी, जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। वाह 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 वाह, इतने बस जी, जबरदस्त क्या कमेंट्स करें, आए हैं। जितना भी लोग खाक दे उड़ाते आर गुजरे, लविंग इट। बस मुस्कुराते रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। चार हर इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। हम्म,
खुश हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा क्या करना है? आई मीन लाइक उदास होके भी वही आउटकम है जो कि खुश होके है, तो फिर बंदा खुश कहते करके हैं गुजार ना, दे। कई दफा मैं तो अपने लिए हमेशा ये समझती हूँ कि मेरे पास स्ट्रांग होने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। तो अगर नहीं, प्लस आई मीन मैं सी व्हेन यू सिंग दैट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग्स टू पीपल। तो ये इतनी अच्छी, मैं तो आई मीन आई एनवी यू फॉर दैट कि यू गेट टू गो टू बेड एट नाइट थिंकिंग कि आज पता नहीं कितने लोग आपका गाना सुन के कितना खुश हो रहे होंगे, कितना अच्छा उनको फील हो रहा होगा, दे विल बी कमिंग आउट ऑफ I'm so सैडनेस। blessed. I am so blessed, and I am so grateful, so grateful, so grateful कि आई थिंक जो आपके इमोशंस जिनसे आप लाइफ में गुजरते हैं, आप अगर उनको एक्सप्रेस कर सकें अपने म्यूजिक के थ्रू, इवन द पेन दैट यू गो थ्रू, इफ यू एक्सप्रेस द सेम पेन इन योर सॉन्ग्स, थ्रू योर सॉन्ग्स, और जो दूसरे के दिल को जाके अगर लग जाए, तो आर्टिस्ट की कामयाबी उसी में है। कि मैं हमेशा अपने लिए ये सोचती हूँ कि मैं आवाज से नहीं छूना चाहती लोगों को, मैं अपनी रूह से छूना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रूह सिंक होगी आवाज के साथ, तो वो जाके दूसरे की रूह को लगेगी। अगर मैं सिर्फ बिल्कुल ऑन द सरफेस गा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ सुर लगा रही हूँ और गा रही हूँ हाँ करके, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज टच भी नहीं करेगी। बिल्कुल सही। वो आपका एक जरूरी आया जी है कि एक यू हैव अ आर्टिस्ट के लॉट लिए। ऑफ फैंस इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जी हाँ, आपके बहुत फैन हैं तो मैंने चंडीगढ़ में चंडीगढ़ वो में कहे तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने वेडिंग का डेब्यू शो किया था। वहाँ अच्छा। पे जो डिलन्स फैमिली है, काफी उनकी मशहूर डिलन्स की कोई वेडिंग हम्म सेरेमनी थी, और हम्म वो मेरा डेब्यू वेडिंग शो था। यानी कि मैं वंडरफुल। वेडिंग शोज नहीं करती ज्यादा, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत ज्यादा कोई एक ही किया हुआ है, इंडिया में मैंने चंडीगढ़ में किया था। इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल क्राउड, ऑल लिसनर्स, और बूहे बारियां, मैंने बूहे बारियां कोई 7 दफा गा दिया था, 7 दफा, अभी भी वो 7-8 दफा हमारे बाय माउथ सरदार जी सॉन्ग। कह रहे हैं कि जी सुनाओ। तो अब मेरे ख्याल में बिफोर वी लेट यू गो, आप छाप तिलक और फिर लास्ट में सरदार जी की रिक्वेस्ट पे बुए बारियां की एक लाइन आपसे। अच्छा तो ठीक है, छाप तिलक। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी पसंद का भी तो एक छोटा सा गाऊंगी, एक हाँ लाइन। प्लीज प्लीज, द फ्लोर इज योर्स। हम्म। हाजी लोग मकेनू जांदे, मेरा मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां, ओ मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां। हाजी लोग मकेनू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां, हो नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ता मिलदा डडूआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गौवां वच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ता मिलदा चाम चड़कियां, भुलिया रबोना नू मिलदा बेनीता जिन्हां दियां सच्चियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, ओ नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। ओदे वाह हत्थ विच कोई तलवार भी नहीं, ओदे हत्थ विच कोई तलवार भी नहीं, ओदा खाली जांदा वार भी नहीं, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, ओ नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। ठीक है। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यूर ऑन अ रोल टुनाइट। नहीं नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड एनर्जीज दैट आई एम सराउंडेड विद। तो अरे नहीं, इट्स अमेजिंग एंड छाप अमेजिंग। तिलक सुना देती हूँ, थोड़ा सा हाँ छाप तिलक छाप गा तिलक देती और हूँ। फिर बुए बारियां की एक लाइन। ठीक है। छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिला के,
नैना मिला के नैनों में आके, नैना मिला के नैनों में आके, नैना मिला के नैनों में आके मत वाली कर देनी रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक हो छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, हुस्न निजाम के बल बल जाइए, हुस्रो निजाम के पल पल जाइए, हुस्रो निजाम के बल पल जाइए, मोहे हो मोहे मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के। Wow, wow. What a beautiful song and what a beautiful video it was. It was a Thank you. very beautiful video. How long did it take for it to shoot? कितने दिन लगे थे आपको? नहीं, छाप तिलक का तो शूट जो है वो 1 डे में हुआ था यूसुफ सली की अच्छा। हवेली में, अब्दुल्ला हारिस ने किया था एंड वाज और वो था भी वो जो हेड कैम नहीं होता, बस वो एक वन टेक शूट था, इट वाज लाइक अ 1 डे, और वो वेडिंग सी हम लोगों ने सेरेमनी क्रिएट Exactly. That was wonderful. नहीं जी, फिर सरदार जी आपका आने लगा है अब बूहे बारियां बिफोर हुई। ये सरदार जी सारे सरदार जियों के लिए है, शाबाश। सारे सरदार जी, सारे पंजाबी इन पंजाबी, सारे उर्दू स्पीकिंग, सारे बलोची, सिंधी, पश्तो, सबके लिए है ये क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ बिल्कुल। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है बूहे बारियां, चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे, डूंगे पानियां च फिर दीवे पे बल दे, कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के, कंडे लग जांगी कच्चा खड़ा बन के, मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां आए, बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। Wow. Excellent. Always takes me back to when it was released. What a nice, simple video. What a nice, beautiful. And you know, इसीलिए ये गाना था कि beautiful. लाइफ एक फ्लैश की तरह गुजरती है। ऐसे